صرف مرزے کی عقل کو دائرے میں لانے کے لیے میں ایک دو باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک شخص ہے مرزے کا، میں اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں جس کا تعلق اس کی سیکورٹی کے ساتھ ہے، تو مرزے نے اس کی وہ بے عزتی کی کہ خبردار تمہیں اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثالیں تم ایسے پیش کر دو جیسے وقت کے جنید بغدادی ہو، اور کرتوت تمہارے یہ ہیں جو تمہارے گھر سے نکل رہے ہیں۔ مرزے کے چاہنے والے مرزے سے پوچھیں کہ مرزے نے جو سرائے عالمگیر میں مسجد بنائی ہے، جس کو اپنی مسجد کا نام دیا ہوا ہے، دوسروں کی مسجد اچھی نہیں لگتی، سرائے عالمگیر میں جو مسجد بنائی ہے اس کا چندہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی چندہ بک بنائی ہوئی ہے مرزا نے۔ کون ہے وہ عثمان جو مرزا کے سامنے بیٹھتا ہے؟ ماشاءاللہ مرزا منگول کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے۔ تمہیں اتنی عقل نہیں ہے، اتنی شرم نہیں ہے کہ آج تک جو مدرسوں کو بچایا ہے اس کے لیے علماء قربانیاں دے رہے ہیں۔ تمہیں جواد نقوی کا مدرسہ بڑا پسند ہے، جہاں ابو بکر کا دشمن پیدا ہوتا ہے، جہاں عمر کا دشمن پلتا ہے، جہاں عثمان غنی کا دشمن پلتا ہے، صحابہ کے دشمن جہاں پلتے ہیں، وہ مدرسے تمہیں بہت پسند ہیں، اور مودودی کو تم رحمت اللہ علیہ کہہ کے پکارنے کے بہت دعوے دار ہو، لیکن جو علماء حق ہیں ان کی بات نہیں تمہیں سمجھ آتی۔ السلام علیکم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کی ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ایک مولانا صاحب ہیں، انہوں نے انجینئر صاحب پر کچھ الزامات لگائے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں لیکن اس پہ پورا نہیں اترتے، اور ان کی اکیڈمی کا ایک جو سیکیورٹی میں ایک بندہ ہوتا ہے اس کا بھی نام لیا ہے کہ انہوں نے انجینئر صاحب کے بارے میں یہ کہا ہے، اور ان کی حقیقت کھولی ہے ساری۔ کچھ جو اعتراضات ہیں انہوں نے لگائے ہیں انجینئر صاحب پر، اور کچھ میرے اندر بھی سوالات ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرواؤں گا انجینئر صاحب کے ساتھ ایک۔ لیکن اس ویڈیو میں جو مولانا مقبول احمد صاحب ہیں انہوں نے انجینئر صاحب پر کیا الزامات لگائے ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے یہ کہا ہے کہ انجینئر صاحب نے ایک مسجد بنا لی ہوئی ہے سرائے عالمگیر میں، اور ادھر سے ان کو چندہ آتا ہے۔ اور بھی جو اعتراضات انہوں نے لگائے ہیں انجینئر صاحب پر اور بھی کئی علماء پر، وہ اس ویڈیو میں اس کے جوابات بھی ساتھ ساتھ دیں گے، رپلائی کریں گے۔ تو پہلے ان کی جو ویڈیو ہے وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ صرف مرزے کی عقل کو دائرے میں لانے کے لیے میں ایک دو باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میری اس بات کا جواب نہیں دیا کسی نے، لہٰذا میری بات بڑی حقیقت پر مبنی ہے۔ مرزے کا آدھا چہرہ تو آشکارا ہو چکا ہے کہ جو مرزا بات کرتا ہے، جو صحیح حدیثوں کا اس نے ڈھونگ رچایا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں مستند بات کر رہا ہوں کہ مرزے کا کوئی بھی آدمی اس کی اکیڈمی میں جس کا تعلق واسطہ ہے، اگر کوئی مرزے کو کہہ دے کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، نہ کریں، تو مرزا ان کے اوپر چڑھائی کر دیتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے بولنے کی، تم اپنی اوقات میں رہو۔ تو سامعین ذرا میری بات کو حوصلے کے ساتھ سننا کہ ایک شخص ہے مرزے کا، میں اس کا نام بھی بتا سکتا ہوں جس کا تعلق اس کی سیکورٹی کے ساتھ ہے۔ اس نے مرزا سے کہا کہ جو آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں ان کے اندر 30% حدیثیں جو ہیں وہ ضعیف ہوتی ہیں، جبکہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ لوگوں کو الو بنایا ہوا ہے، پاگل بنایا ہوا ہے، یا لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو؟ اور اس کا نام قاسم عزیز ہے، جس نے مرزے سے یہ کہا تو مرزے نے اس کی وہ بے عزتی کی کہ خبردار تمہیں اس میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے معاملات ہیں، میں جانوں، میرا کام جانے، تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے؟ کیوں بھائی، کیوں نہیں پوچھنے کا حق نہیں ہے کسی کو؟ ایک طرف تم کہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کپڑوں کا جوڑا کہاں سے بنا دیا تھا، اور دوسری طرف جب بات تمہارے گریبان میں آئے تو تم دوسروں کو خاموش کروا دو۔ مثالیں تم ایسے پیش کر دو جیسے وقت کے جنید بغدادی ہو، اور کرتوت تمہارے یہ ہیں جو تمہارے گھر سے نکل رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ مرزا آج تک یہ روتا پیٹتا رہا ہے کہ مولوی چندہ لیتے ہیں، چندہ لیتے ہیں۔ انسان کو بات کم از کم وہ کرنی چاہیے کہ خود تو اس کے اوپر جو ہے وہ پیرا دے۔ اس قدر جھوٹا آدمی کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ مرزے کے چاہنے والے مرزے سے پوچھیں کہ مرزے نے جو سرائے عالمگیر میں مسجد بنائی ہے، جس کو اپنی مسجد کا نام دیا ہوا ہے، دوسروں کی مسجدیں اچھی نہیں لگتی، سرائے عالمگیر میں جو مسجد بنائی ہے اس کا چندہ کہاں سے آتا ہے؟ اس کی چندہ بک بنائی ہوئی ہے مرزا نے۔ دوسروں کو باتیں کرتے ہو اور خود وہی کام کرتے ہو۔ کون ہے وہ عثمان جو مرزا کے سامنے بیٹھتا ہے؟ ماشاءاللہ داڑھی ہے اس کی، لمبی داڑھی کے نام سے مشہور ہے۔ اچھی بات ہے، میں داڑھی پر بھی بات نہیں کرنا چاہتا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے، جیسے اماد الاسلام کو ہدایت دی ہے کہ وہ جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہیں واپس آ گیا، مرزا کے ساتھ 10-12 سال گزارے۔ یہ اسی کے انکشافات کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی مت سمجھے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ یہ مرزے کے وہ لوگ ہیں جو مرزا کو دیکھ دیکھ کر واپس آئے ہیں، یہ ان کے انکشافات ہیں۔ تو
सामीन मिर्जा मंगोल ने कोड रखा हुआ है, वो जो उस्मान नामी बंदा है जिसके पास चंदा बुक है, उसके पास चंदा आता है, उसी के पास से जाता है, और जब इसने पूछना होता है जी क्या हुआ क्या बना, तो वो कहता है जी इतने आए थे इतने गए थे, हैं माशाल्लाह। और मदरसों पर तुम तान करो, मदरसों को तुम लोगों के सामने ऐसे बना के पेश करो कि कोई एक पाई भी मदरसे को ना दे। तो मिर्जा मंगोल को अपने गिरबान में देखना चाहिए कि जो मदरसों पर तुम बात करते हो, चंदे पर बात करते हो कि कोई सलाब का चंदा ले रहा है, कोई मदरसे के लिए चंदा ले रहा है, तो कहते हैं कि चंदे पर पल रहे हैं, ये मदरसों में इन्होंने गाड़ियां रखी हुई हैं, ये सांड बन गए हैं, शर्म करनी चाहिए तुम्हें। ये लफ्ज कहते हुए भी तुम्हें इतनी अकल नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि आज तक जो मदरसों को बचाया है उसके लिए उलमा कुर्बानियां दे रहे हैं, आज तक जो मस्जिदें चल रही हैं उस पर उलमा ने कुर्बानियां दी हैं, आज तक जो मदरसों में हजारों बच्चे ज़ेरे तालीम है वो उलमा ने कुर्बानियां दी हैं। आज जहां से भी बच्चे आते हैं वो तालीम हासिल करके मदरसों से हाफिज बनकर निकलते हैं, कारी बनकर निकलते हैं, और आलिम बनकर निकलते हैं, मुफ्ती बनकर निकलते हैं। और मिर्जा जी तुमने क्या काम किया है, तुम बताओ। तुमने अंग्रेज के टाउट पैदा किए, तुमने अंग्रेज के चेले पैदा किए, तुमने अंग्रेज के साथ निस्बत रखने वाले पैदा किए। तुम गैरत की गोली खाओ और मदरसों के बारे में सोच बदलो। अगर आज तुम्हें मदरसे वालों की गाड़ियां नजर आती हैं, तो जब ये मदरसे शुरू हुए थे उस वक्त जो मारे खा रहे थे, जेलों में जा रहे थे, और जो मदरसों की खातिर अपनी इज्जत बर्बाद कर रहे थे वो भी मौलवी थे। उस वक्त तुम कहां सो रहे थे, उस वक्त तुम्हारी अकल गैरत कहां थी, उस वक्त कहां थे तुम। आज मेरी बिल्ली मुझे भी आऊं, आज तुम्हारी जुबान खुली है इन मदरसों के बारे में। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाओ परवेज मुशर्रफ की कब्र से जाकर सवाल करो, उसने मदरसों को कैसे दायरे में लाने की कोशिश की थी, और मस्जिदों के जो चंदा देते हैं उनकी फहरिस्त बनाने की कोशिश की थी। आज मदरसे हैं वो नहीं है। जिसने भी मदरसों के बारे में गलत सोचा, मस्जिदों के बारे में गलत सोचा, उलमा के बारे में गलत सोचा, वो कब्र के गड्ढे में तो चला जाता है। लेकिन मदरसे मस्जिदें जो है वो आज भी चल रही है, क़यामत तक चलती रहेगी। और तुम्हें क्या मिलेगा ये तो तुम्हारी कब्र बताएगी कि तुम्हें क्या मिलेगा। और अगर मैं उन बुजुर्गों के हालातों वाक़यात और बुजुर्गों के जो इंकिशाफात अगर मैं रिकॉर्ड करवाऊं तो वो खत्म होने को नहीं आते। कितने औलिया किराम बुजुर्गान दीन है जिनका ये कौल है कि जिसने भी उलमा को बुरा कहा और उलमा की तनकीस की, उलमा की तौहीन की, उलमा की तहकीर की, तो वो कहते हैं कि हमने उनकी कब्रों को जहन्नम का गड़ा बनते देखा है। मिर्जा मंगोल, अगर तुम अकल के नाखुन लेते हो या ले सकते हो तो तुम अपनी कब्र से डरो, इससे तौबा करके गुलशन इस्लाम हकीकी तौर पर दाखिल हो कलमा पढ़ के, वगरना जो तुम्हारा हशर होगा इंशाल्लाह वो रब जानता है या तुम कब्र में जानोगे। इसलिए कि मदरसों पर उठने वाली उंगली जो है वो तोड़ी तो जा सकती है, उसका एतबार नहीं किया जा सकता। आज हजारों लाखों मदरसे दुनिया में चल रहे हैं, पाकिस्तान में चल रहे हैं, तो क्या तुमसे चंदा मांगा किसी ने? जो तुम जुबान खोलते हो, दराज करते हो, तुमसे किसी ने चंदा मांगा नहीं। और जो दे रहे हैं मदारस और मसाजिद में चंदा देकर उनको चला रहे हैं, तुम्हें उनकी भी तकलीफ है। तुम्हें जवाद नकवी का मदरसा बड़ा पसंद है, जहां अबू बकर का दुश्मन पैदा होता है, जहां उमर का दुश्मन पलता है, जहां उस्मान गनी का दुश्मन पलता है, सहाबा के दुश्मन जहां पलते हैं, वो मदरसे तुम्हें बहुत पसंद है। और मदूदी को तुम रहमतुल्लाह अलैह कह के पुकारने के बहुत दावेदार हो, लेकिन जो उलमाए हक हैं उनकी बात नहीं तुम्हें समझ आती, इसलिए कि तुम्हारी तो निस्बत उनके साथ है। तुम अहले हक को क्या जानो। जैसे इंजीनियर मिर्जा वीडियो बनाकर चंदे से लोगों को बदतन कर रहा है, मदरसों से बदतन कर रहा है, असातिज़ा से बदतन कर रहा है, जो गाड़ियां ले लिया, फलां ले लिया, तो तू उनका पेट्रोल देता है? शर्म नहीं आती बात करते हुए? अल्लाह देता है, जो कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाए। तुम क्या समझते हो कि सारी जिंदगी मौलवी जो है और उलमा जो है साथ वो मांगते मेरे हाथ फैलाकर? जी, तो पहली बात उन्होंने जो कही है कि उनका जो सिक्योरिटी में बंदा है और वो जो भी मामला आता है वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है वो हम पर्सनली तौर पर नहीं जानते, तो हम इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। वो खुद इंजीनियर साहब अगर इस वीडियो को देखेंगे वो खुद इस चीज़ का भी रिप्लाई कर देंगे किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि मैं खुद जेलम अकेडमी गया हूँ और उनसे क्वेश्चन भी किए हैं मैंने, तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई मुझे। बाकी जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं और जो भी चीज़ें बाकी हैं सारी वो मैं दूसरे चैनल पे इंशाल्लाह जल्द ही वो अपलोड करूँगा, वीडियो वो शेयर करूँगा सारे एक्सपीरियंसेस। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि मस्जिद है सराय आलमगीर में, ये काफ़ी हैरानगी वाली बात है, क्योंकि इंजीनियर साहब कहते हैं ना कोई मैंने चंदा बुक बनानी है, ना कोई मस्जिद बनानी है और ना कोई किताबें लिखनी है, कोई फ़िरका नहीं लॉन्च करना अपना। तो वो फिर अगर मस्जिद है और उधर से चंदा आ रहा है तो वो तो फिर काफ़ी बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि इंजीनियर साहब खुद कहते हैं कि मैंने मस्जिद नहीं बनानी। कितनी बड़ी मस्जिद है और कितना चंदा आ रहा है वो हमें इस चीज़ों का नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इंजीनियर साहब ने एक मस्जिद बनाई हुई है और इसमें कितनी सच्चाई है वो इंजीनियर साहब इस चीज़ का खुद ही जवाब दे सकते हैं। हम तो इस चीज़ का हमें तो नहीं पता नहीं इस चीज़ का। अगर मस्जिद वाकई है तो इंजीनियर साहब जो कहते हैं कि मैं मस्जिद नहीं बनाऊंगा तो फिर उसमें पूरा नहीं उतर रहे, क्योंकि हम खुद गए हैं जेलम अकेडमी, हमसे तो कोई चंदा नहीं लिया उन्होंने, उल्टा उन्होंने खातर तवाज़ु तो काफ़ी किया चाहे समोसे वगैरह से, लेकिन चंदा वगैरह इस तरह के 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया, उल्टा फ्री जो उनके रिसर्च पेपर होते हैं वो दिए हैं। और इस तरह के अगर मस्जिद में करना होता तो फिर वो अकेडमी में भी कर सकते थे अगर ऐसा होता।
तो ऐसी बिल्कुल चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन अगर फिर भी ऐसा कोई है मामला, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मौलाना साहब को गलतफहमी हुई है, तो फिर वो क्लियर करें, या इंजीनियर साहब या उनके जो इंतजामिया में लोग हैं वो क्लियर कर सकते हैं चीज़ को कि मस्जिद है या नहीं है। क्योंकि अगर होती तो इंजीनियर साहब खोल के अपना किसी न किसी वीडियो में बयान करते। और तीसरा पॉइंट ये है कि मदरसों के खिलाफ है इंजीनियर साहब और मसाजिद के खिलाफ है। हालांकि वो किसी मस्जिदों के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ चंदा बुक्स के खिलाफ है। वो भी उधर जिधर एक एक्सट्रीम लेवल पे चंदा दिया जाता है, ना कि उधर जो इमाम साहब है वो 20-30 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं। उनके लिए तो वो रहम दिल है कि उनको भी ज्यादा जो है उनकी तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए। वो जिन्हें साहब अपनी कई वीडियो में कह चुके हैं कि वो काफी जुल्म होता है कि बिल्कुल 10-15-20 हज़ार जो तनख्वाह दी जाती है वो कम होती है एक इमाम साहब के लिए। तो वो तो उल्टा कहते हैं कि डिमांड करते हैं कि इनकी जो तनख्वाहें थोड़ी बढ़ानी चाहिए, लेकिन एक एक्सट्रीम लेवल तक नहीं कि लाखों में जो तनख्वाहें रख दें या चंदा जो है उनके लाखों में आने लग जाए मदरसों के। इसलिए वो मदरसों के खिलाफ नहीं है, ना वो मस्जिदों के खिलाफ है। उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिर्फ ये है कि चंदा बुक जो रखी होती है और इतना चंदा एक्सट्रीम लेवल पे आता है मदरसों में, इधर भी जो खाते हैं वो एक पूरा उन पे कंट्रोल होना चाहिए, और ताकि ये चंदा जो है इतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होना चाहिए, एक पहली बात। तो दूसरा ये है कि जितनी बनती है उनकी तनख्वाहें वगैरह या जो भी मामला होते हैं वो उतने होने चाहिए, उससे एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होने चाहिए। क्योंकि एक वीडियो में उन्होंने कहा था कि एक बंदा साइकिल पे आता है तो वो 1 साल बाद वो प्राडो ले लेता है, तो वो ये जो एक साइकिल से प्राडो का सफर है, ये सिर्फ हमें हर बंदे को पता होता है कि जब मस्जिद में काम कर रहे हैं और दीन की खातिर काम कर रहे हैं तो इधर से आया होगा ना, कोई और बिजनेसेस तो नहीं खोले होंगे, अगर होते तो वो शो करवाते। तो ये ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ों के खिलाफ है कि एक अवाम का हक होता है इस चीज़ पे कि अवाम आपको पैसे दे रही है, उसको एक जायज़ कामों में लगाएं, ना कि अपनी ज़रूरियात पूरी करें। वो इस चीज़ के खिलाफ है, वो मस्जिदों के या मदरसों के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। मदरसों में भी चले, वो कहते हैं किसी हद तक, जो जैसे तबलीगी जमात की काफ़ी वो तारीफ़ करते हैं कि किसी हद तक वो थोड़ा दीन की तरफ माइल करते हैं, लेकिन वो तालीमात क्या दे रहे हैं उस चीज़ को भी कहते हैं कि वो थोड़ा तालीमात को भी सीधा करें अपना। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू उनका था, ना कि ये था कि मस्जिदों के और मदरसों के बिल्कुल 100% खिलाफ है। और जहाँ तक है ज़ईफ़ अहादीस की बात, वो तो बिल्कुल ही समझ लें कि एक उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि वो हर अहादीस, हर कुरानी आयत या कोई भी किसी तारीख का हवाला देते हैं तो वो JPG ऐड ज़रूर करते हैं अपनी जो वीडियो होती है उसमें। अगर वो ऑथेंटिक रेफरेंसेस ना हो तो लोग उसको जो सर्च करते हैं देख के रेफरेंसेस को, तो वो फिर लोग क्यों उनको इतना जो है फॉलो करते, और क्यों उनके मिलियंस में जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं, सब्सक्राइबर होते हैं, और हर वीडियो पे लाखों व्यूज़ क्यों आते। तो उन्होंने सैयद आगा जवाद नकवी हाफिज़ुल्लाह ताला के बारे में भी बात की है कि इंजीनियर साहब उनकी बड़ी हमायत करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके जो मदरसा है सैयद आगा जवाद नकवी साहब का, उधर जो लोग आते हैं वो तो उनसे तालीमात इस तरह की सीख के जाते हैं कि वो खुलफ़ा सलासा पे लानतान करते हैं और उनके दिलों में उनके लिए बुग़्ज़ होता है। तो हालांकि ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि सैयद आगा जवाद नकवी साहब है उनका बिल्कुल ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि वो तो खुद इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हैं कि खुलफ़ा सलासा पे लानतान की जाए या उनके लिए बुग़्ज़ रखा जाए अपने दिलों में। तो वो तो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। वो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है हमेशा से यही रहा है कि किसी पे लानतान नहीं करनी अगर उनसे इज्तिहादी गलतियां हुई हैं कुछ, क्योंकि ये अहले सुन्नत का अकीदा है कि नबियों के बाद जितने भी सहाबा वलीउल्लाह सारे जो है वो मासूम नहीं होते, तो उनसे कोई इज्तिहादी गलतियां हुई हैं तो वो उनको बस बयान करते हैं। वो ये बिल्कुल नहीं कहते कि उन पे लानतान की जाए या उनके लिए दिल में बुग़्ज़ रखा जाए, बिल्कुल ऐसा किसी को इजाज़त नहीं देते वो इस चीज़ को करने की। तो ये मौलाना साहब आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनके बारे में बिल्कुल रॉन्ग है। ये थी आज की वीडियो, आप लोगों ने खुद फैसला करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।